રાજકોટમાં આગ કાંડની ઘટના બાદ રાજ્યના તમામ અમ્યુઝમેન્ટ પાર્ક નવા આદેશ ન મળે ત્યાં સુધી બંધ રાખવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આનંદ મેળાના સંચાલકોએ હાઈકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે। આનંદ મેળાના સંચાલકોએ હાઈકોર્ટમાં પિટિશન દાખલ કરી છે, જેમાં રાજ્ય સરકારના તમામ ધારાધોરણો અનુસર્યા બાદ ઝડપથી આનંદ મેળાઓ શરૂ કરવાની દાદ માંગવામાં આવી છે। સાથે જ ફાયર એનઓસી સહિત સંલગ્ન તમામ પરમિશન હોવા છતાં મેળાઓ બંધ થતા મોટા નુકસાનની રજૂઆત કરવામાં આવી છે। મેળાઓ બંધ થવાથી અનેક પરિવારોના ચાલુ રોજગાર બંધ થઈ ગયા છે। સાથે જ આયોજકોને ભાડા ભરવામાંથી રાહત મળે તેવી પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। આ મામલે હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર સહિત સંલગ્ન પક્ષકારોને નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે। અરજી પર વધુ સુનાવણી 10 જૂને હાથ ધરાશે। મેં ટોટલ રિવરફ્રન્ટમાં જે પેમેન્ટ ભર્યું છે 1 કરોડ 64 લાખ રૂપિયા ભર્યું છે અને 10 દિવસ જ ખાલી અમારો મેળો ચાલુ રહ્યો અને અમારે 23/6 છેલ્લી તારીખ છે, તો આ અમારું જે એટલું બધું નુકસાન જાય છે એના માટે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે સરકાર સુધી અમારી કાનોમાં વાત પહોંચે। જે અમારે પર ડે લગભગ 7.5 થી 8 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન જાય છે, રાઇટ્સવાળાને અમારે ભાડું ચૂકવવાના હોય, 130-35 માણસો 135 માણસો અમારી અંડરમાં છે, એ લોકોને અમારે પર ડે ચાર્जेस આપવાનું હોય। અમારી સરકારને એ જ અપીલ છે, અગમચેતી રૂપે સરકારે ઠીક છે કે જે કાંડ બન્યો તેના સંદર્ભે મૌખિકમાં સૂચના આપીને બંધ કરાયો, પણ અમારી સરકારને એક જ અપીલ છે કે ઠીક અગમચેતીના રૂપે જે અમે જે નિર્ણય લીધો એ અમને મંજૂર છે, પણ એ નિર્ણયને લગતા તમે 2 કે 3 દિવસમાં જે બી ઓથોરિટીની ફરીથી ચેકિંગ કરાવી, રીચેકિંગ કરાવી, જે લોકોના લાયસન્સ ઓકે છે, જે લોકોનું કામ ખરેખર વ્યવસ્થિત છે, જેન્યુન છે, તે લોકોને ફરીથી ચાલુ કરાવે એવી અમારી નમ્ર અરજ છે સરકારને। રાઇડ સેફટી, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની સેફટી, વાયરિંગનો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટરનો પરવાનગી, એટલે તમામ પ્રકારની રિક્વાયરમેન્ટ પૂરા કર્યા પછી તમે ઇમરજન્સી રાઇડ બંધ કરાવો ચેકિંગ માટે। આવો મોટો ઇન્સિડન્ટ થયો છે એ હકીકત સમજાય છે, પણ પછી કોઈ જવાબદારી જ ન લે અને 8 દિવસ થયા છે જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન રોજનું 4.5 લાખ રૂપિયા ભાડું લે છે। તો રાજકોટમાં ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં અગ્નિકાંડને લઈને કોંગ્રેસ નેતાઓ ઉપવાસ આંદોલન કરશે। કોંગ્રેસ નેતા જિગ્નેશ મેવાણી, પાલ આંબલિયા સહિતના નેતાઓ ઉપવાસ પર ઉતરશે। આગામી 7, 8 અને 9 તારીખે પાણી પર રહીને 72 કલાકના ઉપવાસ તેઓ કરવાના છે। જિગ્નેશ મેવાણીએ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પર કર્યા છે પ્રહાર। એસઆઈટીના વડા તરીકે સુભાષ ત્રિવેદીને તપાસ સોંપાતા ઉઠાવ્યા છે સવાલ। નિર્લિપ્ત રાય, સુધા પાંડે જેવા અધિકારીઓને તપાસ સોંપવાની માંગ કરવામાં આવી છે। અને 7, 8 અને 9 તારીખે કિસાન કોંગ્રેસ તમારા સાથી પાલભાઈ આંબલિયા, સેવાદળના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજીભાઈ દેસાઈ, હું અને સમગ્ર રાજકોટ શહેરનું કોંગ્રેસ પરિવાર કોંગ્રેસ તરીકે નહીં, રાજકોટ અને ગુજરાતના નાગરિક તરીકે ફક્ત પાણી ઉપર રહી 72 કલાકના ન્યાયની માંગણી માટેના ઉપવાસ કરવાના છીએ। તો 7 થી 9 તારીખ સુધી 72 કલાક તે ઉપવાસ કરવાના છે। સાથે જ એસઆઈટીની તપાસ અંગે પણ તેમણે સવાલો ઉઠાવ્યા છે। જે પ્રકારથી સમગ્ર અગ્નિકાંડ મામલો જે સામે આવ્યો હતો તેને લઈને કોંગ્રેસના નેતાઓ ઉપવાસ આંદોલન કરવાના છે। જિગ્નેશ મેવાણી, પાલ આંબલિયા ઉપવાસ પર ઉતરવાના છે। તો 7 થી 9 તારીખ સુધી 72 કલાકના ઉપવાસ તેઓ કરશે। તો જીત બાદ કોંગ્રેસને લઈને ગેનીબેનનું મોટું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ભાજપની સરખામણીએ કોંગ્રેસનું સંગઠન નબળું, ભાજપ જેવી સંગઠન શક્તિનો કોંગ્રેસમાં અભાવ છે। સંગઠન શક્તિના અભાવના કારણે મુશ્કેલી, ઉમેદવારે પોતાના કે સમાજના દમ પર ચૂંટણી લડવી પડે છે। એક પક્ષ જ્યારે ચૂંટણી લડતો થશે ત્યારે જીતી શકાશે। કોંગ્રેસ દમ લગાવીને ચૂંટણી લડે તો પરિણામ લાવી શકે છે। કોંગ્રેસે બનાસકાંઠાથી તેની શરૂઆત કરી દીધી છે। બનાસકાંઠામાં મતદારો કોંગ્રેસની સાથે છે। ગેનીબેને આ વાત કરી। પક્ષ વિરોધી કામ કરનારાઓને પક્ષ ન રાખવા જોઈએ, કાર્યવાહી કરાશે તો જ પક્ષ વિરોધી કામ કરનારાઓને સંદેશ જશે। કોંગ્રેસ પાર્ટીને એક જ સંદેશો કે સંગઠનની કામગીરી એ ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઘણી જ હું માનું ત્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરખામણીમાં આપણી સિસ્ટમમાં ક્યાંક ઘણો મોટો અભાવ છે અને એના કારણે ઉમેદવાર ચૂંટણી લડતો હોય ત્યારે એ પોતાના દમ ઉપર લડવું પડે, પોતાના સમાજની તાકાત ઉપર લડવું પડે। એને બદલે પેરેલલ એ પાર્ટી ચૂંટણી લડતી થશે એ દિવસે હું માનું ત્યાં સુધી કોંગ્રેસ એક મજબૂતાઈથી ચૂંટણી મેદાનમાં જઈ અને જન આશીર્વાદ મેળવશે।
રાજકોટમાં આ કાંડની ઘટના બાદ ફાયર સેફટીને લઈને અમદાવાદનું શિક્ષણ વિભાગ હવે એક્શનમાં આવ્યું છે। અમદાવાદની 700થી વધુ શાળાઓના આચાર્યો અને પ્રતિનિધિઓ માટે ફાયર સેફટીની ટ્રેનિંગનું આયોજન કરાયું છે, જેમાં શાળામાં અચાનક આગ લાગે તો તેને કેવી રીતે બુઝાવી શકાય તેની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે। ફાયર સેફટીના વિવિધ સાધનો સાથે ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરીને ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવી છે। શાળાના પ્રતિનિધિઓ આગની ઘટનામાં કેવા પગલાં લઈ શકે તે માટે સૂચનો પણ અપાયા છે। તો ફાયર સેફટીને લઈને શિક્ષણ વિભાગ સતર્ક થયું છે। અમદાવાદનું શિક્ષણ વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે, જેના માટે ખાસ ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવી છે। શાળાઓના આચાર્ય પ્રતિનિધિઓ માટે આ ખાસ ટ્રેનિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જે ખૂબ જ જરૂરી પણ બન્યું છે। 700થી વધુ શાળાઓના પ્રતિનિધિઓ આમાં જોડાયા। और कल के लिए बात करेंगे डे 2 के लिए, जहां पे गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग दी गई है। वो डिस्ट्रिक्ट है दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नौसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और डे 3 की बात करेंगे, जहां पे गुजरात रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट है पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, डांग, नौसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और डे 4 की बात करेंगे तो डे 4 में गुजरात रीजन और सौराष्ट्र दोनों रीजन के लिए लाइट रेन साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और वो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के आनंद, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, डांग, नौसारी, वलसाड़, तापी, दमन, दादरा नगर हवेली। और सौराष्ट्र रीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे लाइट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। वो डिस्ट्रिक्ट है अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और साथ में दीव। और डे 5 की बात करेंगे, जहाँ पे मतलब गुजरात रीजन में मोस्ट प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। इसमें डे 5 में साउथ गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और नॉर्थ गुजरात के बनासकांठा और पाटन को छोड़कर सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन होगी और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। और डे 6 की बात करेंगे तो डे 6 में भी गुजरात के साउथ और गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 में साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। और नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा और पाटन को छोड़ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जहाँ पे लाइट से मॉडरेट रेन होगा और साथ में थंडरस्टॉर्म होंगे। और डे 5 और डे 6 और डे 7 की बात करेंगे सौराष्ट्र रीजन के लिए, तो सौराष्ट्र रीजन में डे 5 में जहाँ पे रेन होगी वो डिस्ट्रिक्ट है राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद, दीव और कच्छ ड्राइव रहेगा। और डे 6 की बात करेंगे तो डे 6 में अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, दीव। और डे 7 की बात करेंगे तो डे 7 में जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ और कच्छ ड्राइव रहेगा। इन डिस्ट्रिक्ट पे लाइट रेन होने का पूर्वानुमान दिया गया है सौराष्ट्र रीजन के लिए, और साथ में थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 9 लाख चेंज में रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद का 41.8 और गांधीनगर का 42 मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और फोरकास्ट की बात करेंगे तो दोनों जगह के સમાચારોમાં આગળ વધીએ। મોદી સરકારના શપથ સમારોહને લઈ મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। 8 જૂને યોજાઈ શકે છે મોદી સરકારનો શપથ સમારોહ। 8 જૂને પ્રધાનમંત્રી મોદી નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી પદના શપથ લઈ શકે છે। સંવાદદાતા વિનીત કુમાર જોડાઈ ગયા છે અમારી સાથે દિલ્હીથી લાઈવ। विनीत, 8 जून वो दिन क्या तय कर लिया गया है? सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी?
निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार गठन को लेकर के कवायद जो है वो लगातार जारी है और इसको लेकर के अब जो बात है कि अब किस तारीख को जो है वो सरकार बने, इसको लेकर के वह कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं उसके अनुसार 8 जून को जो है वो सरकार का गठन जो है वो कर लिया जाएगा। मंत्रिमंडल का जो शपथ है, मोदी 3 का जो शपथ है वो किया जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी यतेंद्र शर्मा भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। यतेंद्र जी, जिस तरह से अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसको लेकर के शपथ जो है वो 8 जून को लिया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास हुई है? देखिए, पहले बिल्कुल ये माना जा रहा था कि 9 जून को शपथ होगी, लेकिन अब खबर सामने आ गई है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंरी के तौर पर शपथ लेंगे। उसका क्योंकि 7 जून को जो एनडीए के सांसद हैं, यानी कि संसदीय दल की बैठक एनडीए की बुला ली है, वो 2 बजे होगी 7 जून को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में। उसके बाद 8 जून को शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी 9 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नायडू शपथ लेंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। फिर 10-11 को उड़ीसा और अरुणाचल, यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। यानी इसी वजह से 8 जून सबसे मुफीद है, सबसे अच्छी डेट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। और क्योंकि 12-13 में उनको विदेश यात्रा पर जाना है, तो यही बात जो है वो भी मैं आपसे जानना मैं चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि G8 की जो बैठक है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनको जाना है, तो इससे पहले जो है वो सारे कार्यक्रम जो है वो तय हो जाने हैं। तो क्या हम मान के चले कि 8 तारीख ही जो है वो अभी सबसे मुफीद बैठता है? देखिए, बिल्कुल सूत्रों का दावा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो शपथ ग्रहण में जाएंगे इन तीनों राज्यों के में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल, क्योंकि तीनों ही महत्वपूर्ण राज्य हैं बीजेपी की दृष्टि से और एनडीए की दृष्टि से, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर ही जाएंगे शपथ लेने के बाद, क्योंकि उसके बाद उन्हें विदेश यात्रा पर जाना है। तो 8 जून ही सबसे अच्छी डेट है, क्योंकि 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई गई है, उनके साइन का समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो वो औपचारिकताएं जरूरी है पूरी करना, और आज एनडीए के जो घटक दल है, जो प्रमुख नेता है, वो राष्ट्रपति को अपना समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति उनको औपचारिक तौर पर न्योता भेजेंगे सरकार बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उनके पास बहुमत एनडीए के नाते पूरा है, तो वो समर्थन पत्र आज मिल जाएगा। हालांकि आज डिनर भी है राष्ट्रपति की तरफ से, जो पुराना मंत्रिमंडल है, जो निवर्तमान मंत्रिमंडल है, उनको डिनर देंगे, क्योंकि परंपरा रही है कि जब भी जो सरकार का लास्ट दिन होता है उसमें पूरे मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति न्योता डिनर पर इन्वाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही समर्थन पत्र उनको दे दिया जाएगा, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। और परसों 7 जून को एनडीए के सभी सांसद नेता के तौर पर, अपने नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव करेंगे, और उस चुनाव के बाद 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 तारीख को जो है वो अभी तक की सबसे मुफीद दिन है, जिस दिन जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार वह जो है वो शपथ ले सकते हैं। जी विनीत, एक और प्रश्न ये है कि अभी जो स्थिति बन रही है, डिक्लेरेशन कब होगा कि आखिर 8 जून को ही शपथ समारोह होगा? क्या हो सकता है कि आज जो बैठक मिलने वाली है, बैठक का आयोजन किया गया है, उसके बाद जाहिर किया जाए डेट के लिए? हाँ जी, निश्चित तौर पर सरकार जो बनने की प्रक्रिया है उसकी घोषणा जो है वो आज एनडीए की बैठक वह होगी, उसके बाद में ही किया जाएगा और उसके बाद ही पूरी तरह से डिक्लेयर किया जाएगा कि आखिरकार क्या तय हुआ है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एनडीए के घटक दल जो है वो बैठक कर रहे हैं और इस बैठक के बाद ही में यह तय होगा कि आखिरकार प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि जब आज बैठक करेंगे वहाँ पर यह भी तय होगा कि आखिरकार कौन से घटक दल जो है वो शामिल होने में चाहते हैं, या फिर जो घटक दल शामिल होने चाहते हैं उसका आकार क्या होगा, कितनी संख्या में उन्हें में जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ कौन सा विभाग जो है वो उन्हें दिया जाए, इसको लेकर के भी जो मोटे तौर पर जो चर्चा है वो कर ली जाएगी। इसके साथ ही साथ हम अपने में सहयोगी में यतेंद्र शर्मा से भी इस सवाल पर जानेंगे कि आखिरकार इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो कब की जाएगी, कि आखिरकार जो सरकार में शामिल होंगे वो इसकी औपचारिक घोषणा कब होगी शपथ ग्रहण की, क्योंकि यतेंद्र ये भी सवाल हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार औपचारिक घोषणा कब होगी, क्योंकि इसकी कई फॉर्मेलिटी होती हैं। पिछले बार भी हमने देखा था कि कई मेहमानों को बुलाया जाता है, तो औपचारिक घोषणा हम कब माने कि इसकी औपचारिक घोषणा कब हो जाएगी, कि 8 तारीख या फिर किसी और तारीख को जो है वो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे? देखिए, माना तो जा रहा है कि औपचारिक तौर पर आज ही घोषणा कर देंगे, क्योंकि एनडीए के जो नेता हैं उनकी मीटिंग 4 बजे है
और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, क्योंकि औपचारिक तौर पर इस्तीफा भी सौंपा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। आज वो अंदर बैठक चल रही है, अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक हुई और वो प्रस्ताव पास हो चुका है। उस प्रस्ताव में जहाँ एक प्रस्ताव में जहाँ मोदी सरकार के जो कार्यकाल की उपलब्धियाँ रहीं उन पर बधाई दी गई, उनकी तारीफें की गई कि बड़े काम, कड़े फैसले मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए लिए, और बधाई मंत्रिमंडल के सदस्यों ने दी कि तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। और इसके अलावा जो लास्ट महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जो एक परंपरा भी रही है कि जब भी नई सरकार का गठन होता है तो उससे पहले मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना ही होता है, तो वो जो लोकसभा होती है वर्तमान उसको भंग करने की सिफारिश करते हैं, तो वो प्रस्ताव भी हो गया। अभी मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, वहाँ पर भी इसी तरह का एक प्रस्ताव आएगा और उसके बाद एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में सभी नेता प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उस दावे को लेकर समर्थन पत्र जो होगा उसको राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो आप पूछ रहे हैं कि औपचारिक घोषणा कब होगी या कब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, तो वो आज जैसे ही समर्थन पत्र राष्ट्रपति को दिया जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगे।